everyone. मेरा नाम है राहुल. This is Sahil. And you're watching Double Lens Cricket. So guys, India versus England semi-finals finally finished. जितनी भी हमने पूजा की थी, दुआएं मांगी थी, सब के सब काम में आ गई. राहुल, what do you think? कैसा लगा मैच? Bro, what a high scoring encounter, like India versus England. Like it was known कि वो match बहुत ज़्यादा high scoring होगा and बहुत ज़्यादा boundaries लगने वाली है, because both the teams have such a huge and such a high pedigree of players जहाँ पे जिनका strike rate everyone is like above 150 160 वैसे टाइप के. Correct. And like England won the toss and they elected to bowl first. तो वानखेड़े उधर से ही erupt हो गया कि इंडिया की बैटिंग है, that too in semi-finals. तो me, someone being a Mumbaiker who has been to Wankhede so many times, like मुझे पता है whenever India bats first or even in IPL जब Mumbai Indians bats first, तो वो crowd उनका जो eruption रहता है वो अलग level पे पहुंच जाता है. And that's what happened. India was batting first and our Chetta Sanju Samson, like वो form जो carry कर रहे थे quarter final से, we could see that कि semi-finals में भी he started his innings with the same class, with the same intent. And एकदम से मतलब attack mode में जब चालू हो गए संजू, तो things started to flow very smoothly. So that time even Abhishek Sharma was getting into the mix कि थोड़े 2-3 चौके लग रहे. तो उसके बाद I am just hoping यार कि if Sanju Samson is actually taking up your pressure, तो why do you need to get out in a semis? Just चिल करो यार, यू कैन चिल आउट, यू कैन. आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी यहाँ तो दो चीजें हैं. या तो अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा है कि हर मैच में स्लॉग करने की जरूरत नहीं है. आई गेट इट भाई, T20 है, आपको इनिशियल ओवर्स में बहुत बड़े स्कोर बनाने हैं. लेकिन जब आपको संजू सैमसन बोल रहे हैं कि टेक थोड़ा सा नीचे नीचे से खेल, थोड़े टेक्निकल शॉट्स ले ले, उसके बाद अटेम्प्ट कर, देन व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? लाइक एवरी मैच always a off spinner. It's always an off spinner, man. Yeah. Always an off spinner taking. और मे बी ही जस्ट आस्क्ड टू डू दिस कि भाई तू जा, ठीक है, एंड तू मार, तू जितना मार सकता है. अगर तू चल गया तो क्रेजी, नहीं चला तो बाकी संजू सैमसन और देख लेंगे. क्योंकि इफ दिस वाज नॉट द केस, आई डोंट थिंक सो ही हैज दीस लाइक इतना गट्स एंड सच अ कॉल टू स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग द वे ही हैज बीन प्लेइंग, राइट, इवन आफ्टर सो मेनी ड्रॉप्स. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस बंदा है. बट द थिंग इज कि नाउ वी वांट कि फाइनल्स में नाउ सिंस वी हैव now we are into the finals, तो एक दिन अभिषेक शर्मा का होना चाहिए. that is something that everyone is praying. So just let's move on from Abhishek Sharma, but we want him to be there in the finals. So संजू सैमसन ने जो इनिंग संभाली, उसके बाद जो स्ट्राइकिंग, मतलब संजू सैमसन की वो फॉर्म जो कंटिन्यू हुआ है, दैट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल टू वॉच. जो बाउंड्री सेट हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट्स लग रहे हैं, दैट वाज समथिंग एल्स. बिकॉज a 97 in a World Cup knockout can give you some level of confidence कि I have stayed there for the team when the pressure was at the peak. So that time if I have stayed, तो now मुझे first batting में इतना कुछ महसूस ही नहीं हो. Yes. And going back to Wankhede a little bit, as you were saying कि ये बहुत अच्छा स्टेडियम, हर मामले में ये एक अच्छा स्टेडियम रहा ही है. Whether it is records, whether it is runs, or whether it is just the crowd, right? It's amazing. I mean, it's amazing. मैं जब देख रहा था तो we could not hear it, but then later when we saw some reels and some posts, so every time the morale was going down, अभिषेक का विकेट आया और कोई भी थोड़ा भी अगर डिप आ रहा था, the crowd was there. Crowd always kept us going. They started chanting Ganpati Bappa Moria, or they were singing songs, Chak De India. So yes, absolutely, I just wanted to go ahead and put this out one more time ki Wankhede, what beauty you are. For real, absolutely. And Ishan Kishan, man, the fireworks Ishan Kishan ne jo laga hai, you could see Ishan Kishan is also coming with a great form throughout the tournament, and वो continue हो रहा है. So Ishan Kishan, if top order में there's someone we can rely on, Ishan Kishan is there. And आज बहुत सारे लोग ने वो जो कैमियोज खेले हैं 30-40 के, that have helped us actually to put up the gigantic total that we were hoping for. And वो प्रेशर इतना फिर इंग्लैंड पे हमने वो डाल दिया कि इतना बड़ा चीज है. So that was much needed in the semi-final. Yes, and बैटिंग परफॉर्मेंस ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर ने. जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर में इतना डेप्थ अब तक दिखते हुए आया नहीं है. हर किसी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, राइट? इवन टू द एक्सटेंट ऑफ तिलक वर्मा, ही हैज आल्सो परफॉर्म्ड रियली गुड. आई थिंक ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300 और समथिंग. सो हर किसी ने भले छोटे नॉक्स खेले, बट अमेजिंग विद अमेजिंग स्ट्राइक रेट. सो या वन मोर डिसीजन व्हिच आई रियली लाइक्ड वाज कि जो शिवम दुबे को नंबर 4 पे जो भेजा टू कंटिन्यू दैट फ्लो ऑफ रन्स एंड कंटिन्यू that strike rate, that was a tactical move that worked really well for India. क्योंकि उस टाइम पे अगर थोड़े भी बाउंड्रीज और कम लगते एंड जिस तरीके से वो गेम आगे बढ़ा है, it just felt कि वो शिवम दुबे के वो स्ट्राइक्स एंड शिवम दुबे के वो important hitting somewhere also made the difference. क्योंकि
वो मिडिल ओवर्स में जब यू चार्ज बॉलर्स स्पेशली स्पिनर्स एंड यू मेंटेन दैट रन रेट, that is when things actually go from go from just bashing a team to actually knocking them out completely. वो एक Absolutely. डिफरेंस, वो एक मिडिल ओवर्स का वो फेज क्रिएट कर सकता है if we Absolutely. keep on pushing harder and harder. So that's what I Absolutely. felt when Shivam Dube was batting. आज का गेम वाज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करो और आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बुलजाय पे लग जाए तो आउटकम आपको कैसा मिलता है, राइट? वेदर इट वाज संजू सैमसन, आई मीन संजू सैमसन तो ऑब्वियसली नॉकआउट के बाद डेफिनेटली ही वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, बट काफी ऊपर नीचे उनके साथ भी देखे, कुछ मैचेस में उनको ड्रॉप किया था, कुछ मैचेस में वो खेले, बट वेदर इट वाज संजू सैमसन और अ लॉट मोर अदर एक्सपेरिमेंट्स, तो टुडेस मैच वाज ग्रेट ऑन एवरी पार्ट. एंड एक मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, you know that India is actually putting up a great show when there is Tilak Verma and Hardik Pandya competing against each other in terms of strike rate. Always जब भी ये होता है, हमने कोई previous match में भी देखा था वर्ल्ड कप में, not the very previous, but कभी तो 50s के लिए when they were competing, and then the same thing today also we saw कि they were competing against each other, 9 balls for 27 and those type of innings. तो तब we know when it's India's day, ये चीज तो होती है. हार्दिक एंड तिलक एंड में बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टरस मोड में चले जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ वाइब ऑल टुगेदर. करेक्ट. And I like this internal healthy competition between Hardik and Tilak Verma, है ना? I mean, we have talked about कि कैसे Hardik is at this point is not even aura farmer, he's the source, right? Source of aura, he allows everyone to go ahead and farm, but Tilak Verma के केस में वो सीन नहीं है. Tilak Verma के लिए he never allows him to go for half centuries or centuries. So वो तो it is extremely fun to see that. Yeah, it is extremely fun to see that. Amazing. Aura farming की बात अगर आ गई है तो अभी second innings में we are going to continue about that aura farming. So guys, so India's first innings, India put up a gigantic score of 253, and उसके बाद it was as if कि India ने seal कर लिया अपना spot. Everyone was thinking that कि अभी it's just कि England भी मारेगी, लेकिन पहुंच के maybe 200 पहुंचेगी, 210 पहुंचेगी, and ऐसा लग भी रहा था major time तक, but उसके बाद जो चीजें हो रही थी, like one guy who stood up, Jacob Bethel, I mean, oh my god, he was like unstoppable today. जिस हिसाब से he was striking the balls, उसने आके ही like बुमराह को जो लेग साइड पे फ्लिक मारा 6 के लिए, I was like okay, बुमराह को 6 मार दिया, ठीक है, टच में लग रहा है. Then there was no stopping him. He was just coming around, step out करके मार रहा है, खड़े मार रहा है, and शॉट्स लग भी रहे थे, बहुत ज्यादा ह्यूज सिक्सेस जा रहे थे. नहीं मतलब या ग्रेट नॉक बाय बेथल, लेजेंडरी नॉक है ना, और उनको उस तरीके की अप्रिसिएशन मिल भी रही है. राइट आफ्टर द मैच वानखेड़े आल्सो शोड राइट द अप्रिसिएशन. बस मेरा बोलना इतना है, ही इज आल्सो लकी कि ही प्लेड दिस नॉक एंड डिड नॉट विन. क्योंकि अगर इंग्लैंड जीत जाती ना तो ये जितना अप्रिसिएशन इंडिया से मिल रहा है ना, हाँ फिर वो ट्रैविस हेड 2.0 हो जाता. एग्जैक्टली, मैं बोलने जा रहा था कि ट्रैविस हेड 2.0 बन जाते हैं जेकब बेथेल, पर वो बच गए कि उन्होंने इतना अच्छा नॉक खेला और फिर भी इंडिया जीत गई. एक टाइम पे व्हेन जेकब बेथेल एंड विल जैक्स वर क्रूजिंग, ओके, तो दैट टाइम ऐसे लग रहा था कि नाउ थिंग्स कैन गो इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि जिस हिसाब से वो दोनों का स्ट्राइक रेट है, जिस हिसाब से उन दोनों के पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है, आई फेल्ट कि अब इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि दोनों सेट हो चुके हैं एंड कुछ सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था. सही बात है. उसके बाद जो होता है, द वे अक्षर पटेल ग्रैब दैट कैच ऑफ विल जैक्स, एंड जो वो रैली करके जो शिवम दुबे को कैच दिया है, लाइक 2024 का नॉस्टैल्जिया वापस वी कुड रिलिव इन दैट कैच. हां एब्सोल्युटली. और अक्षर पटेल मतलब ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट हो ही गई है बात काफी. गेम के बीच में ही कमेंटेटर्स लाइक इनको ही दे दो मैन ऑफ द मैच, मैं तो चाहता हूँ इनको ही मिले. और कमेंटेटर्स क्या कमेंट्री चल रही थी. इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हो और बापू नाम भगाए, ऐसा रिलेटेबिलिटी अलग लेवल पे क्या लिखा जा रहा है, क्या बात है. तो एब्सोल्युटली अक्षर पटेल यार जितने आकाश चोपड़ा का बिट था, आई रिमेंबर कि इंग्लैंड का मैच हो एंड बापू ना बचाए, मतलब दैट वाज वो स्पॉन्टेनियसली सोचना भी कितना मुश्किल होता है ना एवरी टाइम. फिर बुमराह के ओवर में क्या बुमराह अकेले अहमदाबाद जाएंगे या पूरी टीम को लेके जाएंगे. बोला अरे ये कौन है. तब बोला था रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऐसे मत बोलो. गुलजार आ गए क्या कमेंट्री बॉक्स में. बट हाँ भाई सही बात है, अक्षर पटेल ही स्टूड ऑन बिजनेस. जितने भी कैचेस लिए, the first catch as well as the second catch itself, first catch में भी काफी उन्होंने ट्रैवल किया, उसके बाद बहुत ट्रैवल करके ही तो
right, right. Absolutely, and taking a catch जिसने इतनी ज्यादा हाइट अचीव की है, it is always very very tough. So amazing job. क्या बात है अक्षर पटेल, क्या हाँ बात है kudos अक्षर यार. पटेल. Kudos Absolutely. and hats off for your performance. And then when we move to the last 5 overs of the game, semi-finals of a World Cup, 5 ओवर में 69 needed. And मामला यहाँ पे कुछ भी हो सकता है because 5 overs में 69 has been like 5 overs में 69 has been achieved so many times. So many तो times, ऐसे especially in a stadium like Wankhede. हाँ एट अ स्टेडियम लाइक वानखेड़े जहाँ पे ये एक नॉर्म है टू क्रिएट 70 to 80 runs in the last 5 overs. Correct. And World Cup semi-final, like India is bowling, तो that ऐसा लग रहा था यार कि क्या होगा. Although like the relieving factor was कि बुमराह के 2 overs बचे थे. Correct. And Jasprit Bumrah के वो 2 overs, those 2 overs were the thing that actually turned up the game completely. Absolutely. Because 5 overs में 70 के बाद भी the over that he bowled, the 16th over, उसमें भी he contained them. He didn't give much. Correct. 8 या 9 runs का ही over गया वो वाला. Correct. And उसके बाद they again took charge. England was again smashing us. And बाद में equation हो गया था 3 overs में 45. And that time like Surya and Gautam Gambhir दोनों ने एक call लिया that now Bumrah should be bowling this over, 18th over. Absolutely. And that was a tactical move that actually changed the whole thing, the whole equation of semi-finals. Because सही बात है. Jasprit Bumrah was the man who was needed at this hour. क्योंकि अगर तुम ये ओवर में पिट जाता कोई तो उसके बाद even if Bumrah would have contained the runs, लास्ट ओवर में अगेन वो लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा थे. तो इसी ओवर में वो 20 रन्स का प्रेशर कुछ क्रिएट करना था कि लास्ट 2 ओवर्स में 40 रन ही बचे या 38 37 ऐसा कुछ बचे, सो दैट इंडिया कैन स्टिल गिव अ फाइट. तो correct. And Jasprit Bumrah delivers again and again, a legend for a reason. Absolutely. Goat Jasprit Bumrah. Gotra. He's called Gotra now. So absolutely. Words कम पड़ जाएंगे to describe how lucky we are to witness Jasprit Bumrah in our side. And it is a privilege, honor, flex, जैसे सब लोग बोलते हैं that Bumrah plays for our country, and he shows it time and time again. And that's what happened. And also उसके बाद हार्दिक पांड्या over. अरे मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट के 5 ओवर्स में, ठीक है, जितनी चीजें हुई है, राइट फ्रॉम बुमराह's ओवर टू द रन आउट टू हार्दिक्स ओवर टू इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शिवम दुबे's ओवर, उनके भी पहले 2 बॉल्स अमेजिंग. ये सारी चीजें वाज अ पार्ट ऑफ द पजल. अगर इसमें से एक भी थोड़ा भी लूज होता ना तो जेंगा के जैसा सब गिर जाता. वो जेकब बैटल तो खड़ा था बस खत्म करने के लिए खड़ा था. पूरा शो स्पॉइलर होने वाला था अपने लिए इंडियन टीम के लिए. करेगा अगर बुमराह इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करता एंड हमारे ऑरा फार्मर मिस्टर हार्दिक पांड्या वो थ्रो नहीं देते तो एक बहुत सच्ची बोलूं ना, बीइंग अ पेसिमिस्टिक, मुझे लगा था नहीं होगा. जिस तरीके से बैटल मार रहा था, ठीक है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ चलो बुमराह के पहले हमने तो एक इंसान की बात ही नहीं की, वरुण चक्रवर्ती, है ना. वरुण चक्रवर्ती क्या उन पे आते हैं. वरुण चक्रवर्ती बहुत ज्यादा मारा गया है यार. वरुण चक्रवर्ती मैच में काफी पिक हो रहे वरुण चक्रवर्ती एंड बहुत ज्यादा मारा गया है. लाइक 4 ओवर 60 प्लस कुछ 63 64 आई थिंक मारा गया है. लगता है फाइनल्स में उनको खेलना चाहिए और मे बी कुलदीप शुड बी और मोहम्मद सिराज शुड बी गिवन अ चांस. क्या लगता है? लाइक अभी कैसे यू कांट चेंज सो मेनी थिंग्स इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट. एक दो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स की टीम हमेशा सेम रहती है. Whether Kuldeep should be brought back is a good question. If he's brought back, so it's okay that Kuldeep also plays. लेकिन again वो game time की बात आ जाती है. Have you played the matches before थोड़ा to have that? We also don't know कि how Kuldeep will perform in the finals. सही बात है. तो rather we'll back the players who have been playing. So and I don't think anybody. I think the playing 11 will remain the same. But just hoping that Varun Chakravarti comes back in the final. Varun Chakravarti and Abhishek Sharma, all eyes will be on these 2 players. Whole India will be, hoping that our number 1 ranked players actually now put up a really great show in the finals. सही बात है. That's what is expected. Yeah. Absolutely. हाँ. Yeah. बस फिर और क्या है? ऐसे ही देखते we won the match, right? We were in the finals. Yes, absolutely amazing. And टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के छोड़ के एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एंटरटेनिंग मैच था. आधा बॉलीवुड बैठा हुआ था, है ना. हमारे
खुद we won by 7 by the way था for a reason तो हम 7 रन से जीत गए in front of MS Dhoni everyone was there और कितने beautiful movements वो साक्षी भाभी का moment था that was a moment yes and so many yes, good things yes. so it was a great overall great match मजा आया काफी देखने में it was very fun India performed the way we were expecting to India perform in both the things bowling order थोड़ा सा यहाँ वहाँ dicey रहा but no worries Varun Chakravarti we are backing you you will be back don't worry about it है ना हमारे mystery spinner spin करके दिखाएंगे हमें some mysteries in the finals we are hoping for that Yes, any closing thoughts Rahul just that it's one more game now and backing our team yeah same like just confidence से इस बार we have performed just hoping that we perform the same thing and we keep calm during those pressure situations बस यही सही चाहिए बात and है yes let's go India let's get this trophy. Absolutely. On that very hopeful and positive note, let's end the video here for today. I hope you guys had fun. I hope आपको हमारी videos पसंद आ रहे हैं. Please let us know your comments. Please share these videos. Like, subscribe है ना हमें भी reach मिलेगी. So we can go ahead and build a small cult of us है ना cricket enthusiast. Absolutely. So guys मिलते हैं on the day of final. Let's back our men in blue and that's it for today's video. So 3, 2, 1. Bye bye. Bye bye.